हेलो गाइस, हम तो पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम और हम मुसाफिरों के जैसे भटक रहे हैं विशाखापट्टनम की गली सॉरी रोड में। पीछे में और है, नहीं दिख रहा है, आगे देखिए और गर्मी नहीं है, वरना वहाँ 1 बजे हम लोग उधर quantity and quality. Okay, so here you can see it is commercially important in the sense first comes the trawl gear, long line, then what else? Percy, gill net, trans. So trawl gear is a combination of a textile, textile webbing materials and also not many accessories are involved to increase the efficiency of the gear. So trawl gear based on the operation we are having different varieties based on the depth of operation, method of operation. So the principle remains the same, which is dragging. So every gear you have to understand what is the principle behind the operation. See, for example, this is dragging. Whereas in the Percy it is a saloon. Gill net is gilling. For each thing, for a wounding gear or a normal lifting gear or what else, pumps, everything is having its own principle of operation. Okay, so you will be dragging the gear up to a limit, and that is called the fishing operation of a trawl gear. So here you can witness a bottom trawl gear, and that has to be a big water, but since it was damaged, it is still in the water. So trawl gear, there will be starting from here. We will be having our vessel, the wheel house, mast will be there, another one addition to that. There will be winches. Winches will be holding this trawl. sapo يعني Pangasius, white Pangasius, black Pangasius। ये कौन है भाई? पत्थर है।
So in that engines, what are the components? Okay, so when we are dismantling this engine, so inlet valves and exhaust valve is there, valves are there, valve springs are there, fuel injectors are there. Okay, and valve stem, valve collect, and inlet inlet manifold. Okay, inlet manifold outside it is there in the bigger engine. I will show you inlet manifold, exhaust manifold, air filter. Okay, then this fuel injector. Okay. This engine we cannot run for long time. Why? Because cooling system is not available. Okay, immediately we can. Gracias, Pangas. Yes. Pangas. What is Pangas? आखिर तो बड़ा बड़ा क्यों? स्पेशल का बस लगाना अच्छा नहीं आ रहा तो तुम्हारा नंबर पढ़ाई पहले किडनी लाए और किडनी चलते Turqués. कंपेयर करते हैं उठना उठना सब लोग बिगाड़ी तो तुम हाँ सी काऊ वो वाला फोटो शूट चल रहा है क्या सर नाइट आउट आरके बीच वाईजैग मैंने कहा देखिए हम आ गए आरके बीच पे आरके बीच फाइनली आरके बीच पे आए कुछ दिखी तो नहीं रहा है समुद्र कहाँ है Where is he? वेरी सी मैं तो चल रही तू देख सी छुप गया है सी छुपा नदी में बदमा हेलो हेलो गाइस हम पहुंचे हैं आरके बीच वाईजैग विशाखापट्टनम देखने विशाखापट्टनम घूम रही है कहाँ है विशाखापट्टनम इतना सुंदर लहरा भाई पत्थर के पास चलो ना हाय गाइस
वाह, दुनिया जन्नत इसी को बोलते हैं शायद। फोन वोन भाई थोड़ा दूर दूर रखे रहना। वीडियो बनाना इसलिए गाइस मैं बना रही हूँ। हाँ गाइस, ये है विशाखापट्टनम। फिर से बनाएंगे स्टार्ट से। ये मिस लक्ष्मी मेनिका, हम लोग आए हैं आर के बीच में। ये है विशाखापट्टनम की खूबसूरत नज़ारे आर के बीच का। ओहो प्यारी प्यारी भाई, इतना जबरदस्त साउंड टाइट्स आ गया, वेव्स आ गए तो हो गया। चल उसी रहते हैं हम उड़ के जाएंगे। और भाई कितना बुरा है, अभी नहीं आता था। भाई इधर आ जा, क्योंकि ना अभी टाइट ना बढ़ा देख हुआ देख है। देख देख कितना लाइफ टाइम में फर्स्ट बार ओशियन, नहीं नहीं सी। लेकिन
ओ भाई, इतने सारे ये है हर्बर, इसी को बोलते हैं हमारे फिशरीज के दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे हाई कैप्चर फिशेस। ये ट्यूना, ये हर्बर। ऑरेंज वाले में जाना है ना, ऑरेंज वाले में जाना है। मीटर विंडवेल, ये हम लोग का हवा का दिशा डायरेक्शन स्पीड बोलेगा। डायरेक्शन स्पीड इट विल गिव एंड इट विल गिव इन द नॉट्स, क्योंकि हम लोग रोड में किलोमीटर मीटर बोलते हैं, दरिया में हम लोग नॉट्स नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। 1 knot इक्वल टू 1.854 किलोमीटर। ओके, अकॉर्डिंगली इट विल गिव इन द नॉट्स एनीमोमीटर विंडवेल। यू कैन सी देयर वॉकी टॉकीज, वो पीछे में वॉकी टॉकीज है फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन द deck and engine room, deck and wheelhouse, engine room to wheelhouse, ship to port and between two ships, 15 nautical mile. ये वाला 25 nautical mile है VHF DSC, communication between two ships, ship to port, port to ship. Other than that, during emergency में हम लोग उस पर रेड बटन है, वो दबाएंगे तो DSC भी है, उस पर दबाएंगे सराउंडिंग का कोई भी जहाज है उन लोग अलर्ट होगा और हम लोग आके सहायता करेगा। ओके, then this is the rudder indicator, जहाज कितना एंगल घूम रहा है, हम लोग रडर विल भी जहाज का नीचे में रहता, हम लोग को दिखेगा नहीं, तो उसका रेपुटेशन इधर दिखेगा। तो जहाज कितना डिग्री स्टारबोर्ड कितना डिग्री पोर्ट घुमाया, ये हम लोग को पता चलेगा। दिस इज कॉल्ड रडर इंडिकेटर। ओके, then this is an echo sounder, it will give the depth of the water below the ship. हम लोग का जहाज का नीचे कील का नीचे ड्राफ्ट का नीचे का जितना पानी दे देता है वो ड्राफ्ट डेप्थ दिखाएगा। इसमें डेप्थ भी देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। कोई पत्थर हमिंग हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, कोई पत्थर है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये तो हार्ड बॉटम हार्ड है, मट्टी का बना, वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ रडार, इसको ना ईयर्स ऑफ द शिप बोलते हैं। साउंड, दिस इज कॉल्ड आइज ऑफ द शिप, दिस इज कॉल्ड अ रडार। रडार मीन रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार कभी यूज होता है रात को नेविगेशन करने का टाइम, हम लोग को आंख से तो दिखेगा नहीं, कोई बोट उठ जा रहा है दिखेगा नहीं तो अभी हम लोग को फॉग गिरता है, अभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, फॉग वो सब गिरने का टाइम हम लोग आंख से दिखेगा नहीं, नॉट साइड हम लोग जाते रहेगा बेंगल दिखेगा नहीं, वैसा टाइम में इसका बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट रात को नेविगेट करने के टाइम कोई जहाज मूवमेंट करता है, हम लोग बराबर देख के एक्शन नहीं लेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं तो जहाज कैसा मूवमेंट करता है। उसके बाद हम लोग उन लोग का पोजिशन भी देख कर बुला के बात कर सकते, तुम लोग ऐसा आ रहा, हम लोग ऐसा जाएगा, डिस्कस करके वी कैन क्लियर करता है, क्योंकि दरिया में एक्सीडेंट होना बहुत बड़ी रिस्क है। एक बार हुआ बोले सब खत्म।
Then this is called a GPS global positioning system. अभी हम लोग मोबाइल में भी आ गया, वैसे GPS है वो 8 सैटेलाइट हम लोग का पोजिशन एवरी 30 सेकंड में अपडेट करता है। 30 सेकंड में हम लोग पोजिशन अपडेट करेगा, वो पोजिशन हम लोग नेविगेशन चार्ट में प्लॉट करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेविगेशन चार्ट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल स्केल एंड डिवाइडर हम लोग प्लॉट करेंगे पोजिशन। वो पोजिशन प्लॉट करने के बाद हम लोग कौन से एरिया में हम लोग को वी कैन फाइंड आउट इजीली। समुद्र बहुत बड़ा हम लोग देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, उसमें हम लोग को पढ़ना है इतना माइल ओडिशा से इतना माइल डिस्टेंस में, इधर बंगाल से इतना माइल से वी कैन गेट अदर देन वो पोर्शन जोड़कर दूसरा पोर्शन भी प्लॉट किया सोचिए। तो ये पोर्शन जो पोर्शन जाने में कौन सा कोर्स में जाने का, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने का सब वी कैन कैलकुलेट इन द नेविगेशन चार्ट दैट इज पब्लिश बाय नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस देहरादून। उधर पब्लिश उधर तैयार करता हम लोग लेकर। ओके, दैट दिस इज कॉल्ड AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका पर्पस में बॉम्ब ब्लास्ट होने पर गवर्नमेंट मैंडेट नहीं करता सब जांच को लेके जाने का। इसका मेन पर्पस है हम लोग दरिया में तो हम लोग आजू बाजू कितना जहाज है 20 माइल या 25 माइल 30 माइल में सब जहाज का डिटेल्स पूरा हम लोग को मिलेगा। उसका नाम, उसका पोजिशन, उसका कोर्स, कौन सा स्पीड में जा रही है, उसका लेंथ कितना है, कौन सा पोर्ट जा रहा है और क्या सामान लेके जा रहा है, उसी के अनुसार हम लोग का पूरा डिटेल्स में उन लोगों को मिलेगा। तो हम लोग रात को नेविगेट करके कम्युनिकेट करके भी बात कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास फॉर नेविगेटिंग फॉर टर्निंग द कोर्सेस ऑफ द शिप। हम लोग कोर्स डायरेक्शन घुमाने के लिए मैग्नेटिक कंपास, सेम गायरो कंपास। मैग्नेटिक कंपास का पावर का जरूरत नहीं है, क्योंकि गायरो कंपास का पावर का जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी में काम करना। एंड ऐसा वाला मैग्नेटिक कंपास अगर तो मंकी आइलैंड में फिट करते हैं, वी कैन सी इन दिस एंड वी कैन टर्न द इसमें ऊपर में फिट रहेगा, इधर हम लोग डायल देख के हम लोग घुमा सकते हैं जहाज। दिस इज कॉल्ड ए पिनाकल। पिनाकल सब चीज का नाम होता है पिनाकल। मंकी आइलैंड में मैग्नेटिक कंपास देगा, ये पिनाकल में इसमें देख के engage the control and we'll give the head, it will move forward, पीछे करेगा पीछे जाएगा स्टॉप। इधर स्लो स्पीड में आने का, क्योंकि जहाज में ब्रेक्स नहीं रहता। शोर में आप गाड़ी चलाता सड़क ब्रेक मारा, स्पीड हुआ, गिर गया, चोट लग गया, क्योंकि इधर ऐसा नहीं होता है। इधर रोकना है तो उधर से रोक के आने का, कंट्रोल नहीं कर सकते लोग। फुल स्पीड में आता तो मार्किंग कर डैमेज हो जाएगा, डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो बहुत जन आदमी लोग भी काम करता है, इसीलिए इसमें स्लो स्पीड में आना। ओके, तीसरा इंजन कंट्रोल, उसको बोलते हैं नैवटेक्स, नेविगेशन टेलेक्स। उसका मेन पर्पस क्या, हम लोग का ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट कुछ वेदर रिपोर्ट पूरा मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में। फिर पलना टाइम में हवा इतना बढ़ेगा, तो विजिबिलिटी खराब रहेगा, तो बारिश गिरने का उम्मीद है, दरिया फूरेगा, ऐसा पूरा डिटेल। अदर देन दैट वो बहुत पोर्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पाइपलाइन डाल रहा है, सबमेरीन पाइपलाइन जो कहीं तो ऑयल रिग में ऑयल का पाइपलाइन हो सकता है, उसका पूरा पोजिशन मिलेगा। और कोई आदमी मैन ओवरबोर्ड हो गया, मैन ओवरबोर्ड पानी में गिर गया सोचिए कोई जहाज का, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिलेगा। हम लोग वो रूट से जाने का तो नजर रखेगा, कुछ दिखेगा तो हम लोग सेव कर नैवटेक्स, नेविगेशनल टेलेक्स। उसका स्टेशन होता है गोवा में एक तो है, चेन्नई में एक तो है, कलकत्ता में, ऐसे डिफरेंट स्टेशन है। उन लोग का मैसेज मिल देता है, उन लोग ट्रांसमिट कर देते हैं, सराउंडिंग में जितना जाता है सबको मैसेज मिल जाएगा। नेविगेशनल टेलेक्स। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड सार्ट, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस में सार्ट, सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपॉन्डर। उसका मेन पर्पस क्या है, जब जहाज सिंक हो रहा है, सोचिए ना कोई सिंक हो रहा है ना फायर, वो टाइम में हम लोग जहाज छोड़ने का टाइम इसको ऑपरेट कर देंगे सोचिए, तो सराउंडिंग में जितना जहाज है सबको मैसेज मिल जाएगा। रडार में एक टाइप का सिग्नल मिलेगा, उन लोग रडार में मिलेगा, तो उन लोग इमीडिएटली हम लोग हेल्प करेंगे। वो सिग्नल देखेगा तो लोग पता चलेगा कोई जहाज रिस्क है, आएगा हम लोग सहायता करने के लिए। और सामने में ई पर में इमरजेंसी व्हाइट वाला इमरजेंसी पोजिशन इंडिकेटिंग रेडियो बैकवर्ड, जहाज डूब रहा है सोचिए, उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। अगर हम लोग जहाज डूबने के आदमी पैनिक हो जाएगा, वो टाइम में ऑपरेट नहीं भी किया, पानी में फेंक दिया सोचिए, पानी का प्रेशर से ऑटोमेटिक उसका ढक्कन खुल के अंदर के एक्टिवेट हो जाएगा वो सिस्टम। तो ये सब आइटम क्यों है, आदमी का जान बचाने मेन। कितना करोड़ के जहाज आदमी सेव होना।
तो वो ऑपरेट ऑटोमेटिक होगा, तो उसका सिग्नल जाएगा सैटेलाइट में जाएगा, पहले थ्रू सैटेलाइट बेंगलुरु में कोस्ट रेडियो स्टेशन है, उधर जाएगा। उधर उन लोग देखेगा जहाज का नाम क्या है, कौन सा पोर्शन में इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ। चल गरम देख के चल रहा भाई, आज जूता पहन कर आना चाहिए था मेरे को। कविता होट में बैठेगी। पुकारे तू आजा आजा। नहीं 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 भीगना नहीं। या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, अभी घूमो, लोग दिखेंगे ना उनके आसपास रहेंगे। हाँ ठीक है।